فدائے جان قسط نمبر 9۔ زہرا تم؟ امشال روم کے سامنے کھڑی اندر جانے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ وہ پیچھے پلٹی تو سامنے زہرا بتول کا دیکھ کر وہ بولی، جبکہ زہرا کی پریشانی سے دل زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے امشال کو اس روم کے دروازے کو کھولتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ امشال روم میں جاتی اس نے بھاگتے ہوئے اسے روکا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول چکی تھی۔ وہ چہرے پر آئے پسینے کو ایک ہاتھ سے صاف کرنے لگی اور دوسرے ہاتھ سے اسے پکڑ کر سائڈ پر کرتی خوفزدہ نظر اس بند روم کی جانب ڈال کر دیکھنے لگی۔ بھابھی سائیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ کو سنبھالتی نظریں اس روم کے دروازے سے ہٹا کر سامنے کھڑی امشال کے چہرے پر ڈال کر اس سے پوچھنے لگی، زہرا یہ روم کس کا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے دروازے پر؟ امشال نے انگلی سے اس روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ روم؟ زہرا اس سوال پر سٹپٹائی اور اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولنے ہی والی تھی، تبھی پیچھے سے غصیلی آواز پر وہ ٹھہر گئی اور پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ امشال بھی پلٹ کر دیکھنے لگی تو سامنے سرفراز شاہ اور زینب شاہ کو کھڑے دیکھ کر وہ سہم کر زہرا بتول کے کندھے کو تھام گئی۔ اس لڑکی کو اس روم کے سامنے کھڑے دیکھ کر سرفراز شاہ سخت غصے سے پاگل ہو کر آگے بڑھے۔ زینب شاہ انہیں اتنے غصے میں دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ان کے سامنے آتے ہی غصے سے دونوں سے پوچھنے لگے۔ وہ دونوں انہیں اتنے غصے میں دیکھ کر سخت گھبرا گئیں۔ بابا سائیں، زہرا بتول ان کے غصے کی وجہ اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے وہ ڈرتی ہوئی ان کا نام پکار اٹھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اس کا الٹا جواب مت دو۔ بتاؤ کیا کر رہی ہو تم اس روم کے سامنے؟ ہاں؟ انہوں نے زہرا بتول کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ وہ بابا سائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بھابھی سائیں ادا سائیں کے کہنے پر میرا دھیان رکھ رہی ہیں، اسی لیے وہ یہاں نیچے میرے پاس، زہرا نے ڈرتے ہوئے ان سے کہا۔ امشال ان سے پہلے ہی خوفزدہ تھی، وہ ان کی گھریوں سے سخت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں نے یہ پوچھا نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے سوال کا الٹا جواب سن کر وہ سخت غضبناک ہو گئے اور سخت گیر لہجے میں ان دونوں سے بولے، آپ جانے دینا، آپ کی طبیعت پہلے سے ہی خراب ہے، اپنا بی پی ہائی مت کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بچیوں کو معاف کر دیں۔ زہرا تم امشال کو یہاں سے لے کر جاؤ، دیکھو بچی کتنی زیادہ گھبرا گئی ہے۔ زینب شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں پرسکون کرتے ہوئے آخر میں زہرا بتول سے کہا تو وہ جلدی سے امشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر وہاں سے جانے لگی، لیکن سرفراز شاہ کے شدید غصے سے کہنے پر وہ دونوں ڈر کے مارے رک گئیں۔ جا کہاں رہی ہو تم لڑکی؟ رکو، جاننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں کہ اس روم کے اندر کیا ہے؟ چلو میں تمہارے شوق کو پورا کرتا ہوں، جاؤ زہرا، جا کے اس روم کی چابی لے کر آؤ، انہوں نے سخت لہجے میں کہہ کر زہرا بتول سے کہا۔ تو زہرا بتول اور زینب شاہ ان کی بات پر سخت ہڑبڑا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ زہرا، میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، تمہیں سنائی نہیں دیا کیا؟ ہاں؟ زہرا کو وہیں کھڑے دیکھ کر انہوں نے شدید غصے سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں اس طرح سب کچھ بکھر جائے گا، سلطان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے اگر اس روم کا راز کھولا تو امشال میرے بیٹے سے نفرت کرے گی۔ آپ کیوں میرے بیٹے کو خوش رہنے نہیں دیتے؟ کیوں اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں آپ؟ آخر کیوں؟ زینب شاہ ان کے آگے کھڑی ہو کر ان کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑ کر ان سے پوچھنے لگی۔ برباد میں نہیں، اس نے خود کیا ہے خود کو۔ زینب، تم سب کچھ جانتی ہو، پھر کیوں مجھے روک رہی ہو؟ ہاں؟ وہ ایک خبردار، اس سے آگے آپ نے ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ سرفراز شاہ، وہ بے قصور ہے اور میں آپ کو اس کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ 1 سال اس نے درد میں گزارا ہے، اب نہیں، میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، زینب شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ امشال نہ سمجھی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے بیٹے کی وجہ سے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سرفراز شاہ کے سلطان کے اوپر لگا الزامات کی وجہ سے اسے اس روم کے راز کو جاننے کی سخت بے چینی ہونے لگی۔ وہ اپنی نظریں اس روم پر ٹکا کر غور سے اس روم کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ تو میں 1 سال سے اس درد سے گزر رہا ہوں، اس دن کا مجھے ایک ایک واقعہ اچھے سے یاد ہے زینب بی بی، میں اپنی تذلیل، اپنا سب کچھ اس دن کھو چکا ہوں، اور تم کہتی ہو وہ بے قصور ہے؟ نہیں، وہ قاتل ہے میرے۔ سرفراز شاہ کی آنکھیں اس دن کو یاد کرتے ہوئے بھرنے لگیں۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں اپنے آخری لفظ ادا نہیں کر سکے جب زینب شاہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس سرفراز شاہ، بس بہت ہو گیا، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں اتنے سال صرف آپ کے اس درد کی وجہ سے خاموش تھی جو آپ کے سینے میں ہے۔
सिर्फ उसे खोने की वजह से मैं आपका ख्याल कर रही थी। लेकिन आज आप मेरे बेटे को उसकी बीवी के सामने कातिल नहीं कह सकते। उसके दिल में बेवजह शक पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बेटा कातिल नहीं है। उस दिन जो हुआ था वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। कसूर सिर्फ उसका है शाहज़ैं, सिर्फ उसका जो हमारी ज़िंदगी में आग लगाकर अपनी ज़िंदगी में खुश है। कसूरवार वो है और मेरा बेटा बेकसूर है। और वो बेगुनाह होते हुए भी आपकी नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, सिर्फ़ आपकी वजह से। वो पागल आपसे मोहब्बत करता है ना, इसीलिए ख़ुद को बेवजह सज़ा दे रहा है। लेकिन इस बार नहीं, बस बहुत हो गया। बेगुनाह होते हुए उसे सज़ा काटने अब मैं नहीं दूँगी। इस वक्त आपको मैं मौका नहीं दूँगी उसकी ज़िंदगी में आग लगाने का। सुना आपने? ज़ैनब शाह ने सख्त नज़रों से उनकी जानिब देखते हुए कहा, और संजीदगी से वो मिशाल की जानिब बढ़ी और उसे पकड़कर वहाँ से लेकर ज़हरा बतूल के रूम की जानिब बढ़ गई। ज़ीरोन राजपूत ज़हरा बतूल के थप्पड़ को, उसकी सख्त बातों को सोचकर तीसरी शराब की बोतल को मुंह से लगाकर खाली करता, गुस्से से दूर उछालकर चौथी बोतल उठाकर अपने लबों से लगाकर उन बातों को भूलना चाह रहा था। लेकिन सोचें किसी काली नागन की तरह उसके दिमाग में डंग मारकर उसे डस रही थी। तुम शैतान, नीच इंसान, एक छोटी सी लड़की से हार गए, हा। वो सोफे की बैग पर सर रखे, आंखें बंद किए, बोतल हाथ में पकड़े सुकून से नींद की वादियों के सफ़र पर निकलने ही वाला था कि एक खूबसूरत निस्वानी कहकहा सुनकर वो अपनी ब्राउन नशीली आंखों को खोलकर सामने देखने लगा, जहाँ स्याह बुर्का में अपना चेहरा छुपाए वो खड़ी कहकहा लगाते हुए उससे तंज़े अंदाज में बोल रही थी। यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे शैतान कह रही हो? मुझे, ज़ीरोन राजपूत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, डैम इट। सामने अपने दुश्मन अव्वल को खड़े देखकर ज़ीरोन राजपूत आग बगोला हो गया और नफरत से अपनी जगह से उठा और हाथ में पकड़ी बोतल को उसके ऊपर उछालकर गुर्राया। वो गुस्से से ज़ारा बतूल के साय से नशे की वजह से बातें कर रहा था कि तभी उसके फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर बहुत सारे स्याह लिबास में मलबूस गार्ड्स दाखिल हुए। ये क्या हाल बनाया है तुमने प्रिंस? अगर दादा जान ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। यारा, पहले तो तुमने दादा जान के लड़कियां भेजने पर खुद को इतना हर्ट नहीं किया है, तो आज ऐसा क्या हुआ है कि तुम इस तरह खुद को गुस्से से बर्बाद कर रहे हो, इतनी शराब पीकर? उसका तायाजाद अजहफ राजपूत उनके पीछे दाखिल हुआ, तो उसे इस हालत में देखकर वो सख्त परेशानी से आगे बढ़ा और उसे पकड़कर पीछे सोफे पर लेटाकर उसे डांटते हुए बोला, ज़हरा बतूल, आई विल किल यू। तुमने यहाँ मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किस आग में अपने हाथ डाले हैं। ज़ीरोन राजपूत नशे की हालत में गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए अपने तसव्वुर में ज़हरा बतूल को सजाकर गुर्राते हुए बोला, प्रिंस, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये ज़ारा बतूल कौन है? क्या तुम्हारी महबूबा है? अज़फ राजपूत ने नशे में धुत अपने इस खड़ूस कज़न की जानिब देखते हुए पूछा, क्योंकि राजपूत ख़ानदान का बागी सरफिरा बेटा आज पहली बार किसी लड़की का जिक्र कर रहा था, क्योंकि इतनी लगन से पहले ना ही होश में और ना ही नशे में उसने कभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया था। शट अप, उस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि वो मेरी दुश्मन है, तो उसके नाम को सिर्फ मैं लूँगा, तुम नहीं, समझे? ज़ीरोन राजपूत ने अज़फ राजपूत के मुंह से ज़हरा बतूल का नाम सुनकर सख्त गुस्से से उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए गुर्रा कर कहा, ओके माय प्रिंस, नहीं लूँगा तुम्हारे इस जानी दुश्मन का नाम। अरे यार, नशे में भी तुम्हारा थप्पड़ ज़ोर का लगता है। अच्छा हुआ जो तुमने थप्पड़ मार के मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि अब मैं आइंदा इस सोए हुए शेर को गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बल्कि हिम्मत भी नहीं होगी मेरी इस सोए हुए शेर के गुस्से को जगाने की। तुम लोग खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो? इस जख्मी शेर को उठाओ। अगर हम राजपूत मेंशन लेट पहुंचे ना, तो वहां अपने पोते के इंतजार में चक्कर काट रहे शेर हमारे लेट आने पर हमें ही कहीं काट ना डालें। उसके नशे में होने के बावजूद अज़फ राजपूत को उसका थप्पड़ ज़ोर का लगा। वह बिलबिला कर रह गया। गार्ड्स की जानिब देखते हुए उसने ज़ीरोन राजपूत की जानिब देखते हुए कहा, तो अज़फ राजपूत के कहने पर सभी गार्ड्स ने ज़ीरोन राजपूत के मजबूत कसरती जिस्म को उठाया और उसे लिए फ्लैट से बाहर निकले, जबकि अज़फ राजपूत सामने टेबल पर शराब की बोतल देखकर उन्हें उसे वहाँ से ले जाने का कहता हुआ खुद सोफे पर बैठकर बोतल उठाकर ग्लास में मशरूब डालकर पीने लगा। जी, आप लोग कौन हैं? फरहाद के ज़ीरोन राजपूत के फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने की वजह से खूबरू नौजवान ने दरवाज़ा खोला, तो सामने इतने सारे लोगों को देखकर वो नौजवान अपनी एक आईब्रो उठाकर उनके जानिब देखते हुए पूछने लगा, तुम्हारा बाप? फरहाद ने कहते हुए उस नौजवान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, तो वो नौजवान पीछे जा गिरा। गुड फरहाद, तुम आजकल मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हो।
सुल्तान आलम शाह जो पीछे खड़े थे, उन्होंने फरहाद को शाबाशी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, फरहाद खिड़कियां खोलो वरना कहीं ऐसा ना हो मैं इस नागवार बू का गुस्सा इस बेचारे पर निकाल दूं। सुल्तान आलम शाह अंदर दाखिल हुए तो सामने कीमती ब्रांडेड शराब की बोतलों को देखकर उन्होंने नागवारी से अपने नाक पर हाथ रखते हुए फरहाद से कहा, ओके सर। फरहाद उनके हुक्म पर सामने खिड़कियों की जानिब बढ़ा और पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर वापस उनके पीछे आ खड़ा हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? सुल्तान आलम शाह सोफे पर बैठते हुए सामने गिरे नौजवान से पूछने लगे, अज़हफ राजपूत। अज़हफ राजपूत दादा के फेवरेट पोते को गार्ड्स के हवाले करने के बाद जो अपनी अयाशी को पूरा करने के लिए भी ग्लास लबों से लगा रहा था, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर वो मुंह बनाकर उठा और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े लोगों को देखकर वो डर गया। उसे लगा कि दादा ने उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसकी जासूसी के लिए उन्हें यहाँ भेजा होगा, मगर फरहाद के थप्पड़ की वजह से वो समझ गया कि मामला कुछ और है। जब सुल्तान आलम शाह ने उससे उसका नाम पूछा तो उनकी रौबदार पर्सनैलिटी की वजह से उसके मुंह से अपना नाम निकला, ज़ीरोन राजपूत। तुम्हारा क्या लगता है? सुल्तान आलम शाह ने सिगरेट लबों से लगाकर लाइटर से उसे जलाते हुए उन्होंने अज़हफ राजपूत से सर्द लहजे में पूछा, मेरा कज़न। क्यों, आपको उससे क्या काम है? अज़हफ राजपूत को उनके मुंह से ज़ीरोन का नाम सुनकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि ज़ीरोन राजपूत ऐसा इंसान था जिसके दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन की तादाद थी, तो ये भी उनमें से कोई होंगे। मगर इस सरपरे इंसान की वजह से वो खुद को मुसीबत में फंसते हुए देखकर अपने दांत पीसते हुए दिल ही दिल में ज़ीरोन राजपूत को गाली देने लगे। काम नहीं, उस कुत्ते को सबक सिखाना है। उससे कहना अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो सुल्तान आलम शाह की बहन से दूर रहो, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सुल्तान आलम शाह ने शदीद गुस्से से अज़हफ राजपूत के हाथ को पकड़ा और सुलगते सिगरेट से उसकी हथेली को जलाते हुए शदीद नफरत से बोले, और फिर उठकर अपने आदमियों को इशारा करते हुए अपने कदम उस फ्लैट से बाहर निकाले तो उनके बाहर निकलते ही अज़हफ राजपूत को जो उनके गार्ड्स ने धोया, वो अज़हफ राजपूत के फ्लैट से बाहर निकलती चीखों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राजपूत साहब, आप क्यों इस बच्चे पे इतनी सख्ती करते हैं? प्लीज़ आप सख्ती ज़रा कम करें, क्योंकि ये बच्चा आपकी इन सख्तियों की वजह से, मेंटली टॉर्चर की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया है। अगर आप इसी तरह इस बच्चे पर सख्ती करते रहे तो ये आपसे बहुत दूर हो जाएगा। मेंशन में जब नशे में धुत ज़ीरोन राजपूत को लाया गया तो राजपूत साहब जो उसका वेट कर रहे थे, उसे आज बहुत ज़्यादा नशे में देखकर वो शदीद गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कसने लगे। डॉक्टर महमूद, अगर मैं सख्ती नहीं करूँगा तो ये अपने फ़र्ज़ को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। मैंने अपने लोगों को इस पर नज़र रखने के लिए उसके आसपास छोड़ा हुआ है। उसे आज तक पता नहीं है कि मैं उसकी हर जगह जासूसी करवाता हूँ। जिन लड़कियों को मैं उसके पास देख लेता हूँ तो पहले मैं अपने लोगों से उस लड़की की अच्छी दोस्ती करवाता हूँ, फिर उन्हें धोखे से उसके पास भेजता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लड़कियों से सख्त नफ़रत करे। मैं उसके दिल में सिर्फ़ अपने ख़ानदानी बिज़नेस की मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी सख्ती करता हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। मैं ज़ीरोन से अपने से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बाद अगर किसी पर भरोसा करता हूँ तो वो ज़ीरोन राजपूत है। मैं उसे एक मज़बूत बिज़नेस टाइकून बनाना चाहता हूँ। राजपूत साहब अपने ज़िद्दी सरपीरे पोते की जानिब देखते हुए बोले, जो अपने शानदार रूम में अपने शानदार बेड पर आंखें मूंदे हुए था, अमशाल, ज़ाहरा वो अब कैसी है? सुल्तान जब अपने रूम में दाखिल हुए तो मिशाल को बेड पर किसी सोच में गुम बैठे देखकर वो उसकी जानिब बढ़े और उसके हाथों को पकड़कर अपने लबों से लगाते हुए ज़ाहरा बतूल के बारे में पूछने लगे। हाँ, वो अब ठीक है। उनकी आवाज़ और लम्स पर अमशाल बुरी तरह से चौंक कर उनकी जानिब देखती हुई बोली। वो उस रूम के बारे में और ज़ैनब शाह के गुस्से के मुतालिक सोच रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल थे जिनका जवाब सुल्तान के पास था और उस रूम के अंदर। तुम ठीक हो मेरी छोटी दुनिया? बहुत परेशान लग रही हो। उन्होंने उसे परेशान देखते हुए उसके गालों को पकड़ते हुए प्यार से पूछा। जी मैं ठीक हूँ। आपने खाना खाया या फिर बाहर से खा कर आए हैं? अमशाल ने उनकी जानिब देखते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। तुमने कुछ खाया है मेरी छोटी दुनिया? उन्होंने उसकी गोद पर सर रखते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अमशाल को भूख इसी बात की वजह से नहीं लग रही थी। वह सुल्तान के माजी के जानने के लिए बेचैन थी। उसे उस रूम में जाना था, लेकिन कैसे वो समझ नहीं पा रही थी। तो मेरी छोटी दुनिया का दिल इस वक्त क्या चाह रहा है? क्या आपने सुल्तान को तो नहीं चाह रहा, ये पागल दिल तुम्हारा, माय लिटिल लाइफ? उन्होंने उसे पकड़ते हुए अपने ऊपर गिराते हुए उसकी थोड़ी को छुआ। अमशाल उनकी इस हरकत पर सटपटा के रह गई।
सुल्तान, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे छोड़ें। अमशाल सरफराज शाह की बातों की वजह से डिस्टर्ब थी, इसीलिए वो उनकी कुर्बत से सख्त परेशान होकर उनके सीने पर हाथ रखकर बोली, मेरे सीने पर सर रख के सो जाओ डार्लिंग, क्योंकि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। उन्होंने उसका सर अपने चौड़े सीने से लगाते हुए कहा तो अमशाल उनके सीने से लगी उस रूम में जाने के बारे में सोचने लगी, और इस बारे में सोचते सोचते वो कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला, जबकि सुल्तान उसकी खामोशी को महसूस करके उसे आराम से बेड पर लिटाकर खुद कोहनों के बल बैठकर उसे गौर से देखने लगे। क्लास में सब ध्यान से प्रोफेसर की जानी मुतवज्जा थे। ज़हरा बतूल को प्रोफेसर की जानी मुतवज्जा देखकर उसके पीछे बैठी लड़की ने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर का पैकेट निकालकर एहतियात से ज़हरा बतूल के बैग में डाला। पैकेट डालने के बाद उसने किसी को टेक्स्ट किया। तभी उसका मैसेज उस शख्स के पास पहुंचते ही क्लास के बाहर बहुत से कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। तो वो लड़की इन कदमों की आवाज़ सुनकर चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाकर अपनी नज़रें सामने प्रोफेसर पर गाड़ कर खुद को ऐसा जाहिर करने लगी जैसे वो कब से प्रोफेसर का लेक्चर गौर से सुन रही हो। सब प्रोफेसर से अपनी नज़रें हटाकर बाहर देखने लगे। ज़ारा बतूल भी बाहर देखने लगी, जहाँ वर्दियों में मलबूस पुलिस की भारी नफरी तेज़ी से भागते हुए उनकी क्लास की जानिब बढ़ रहे थे। हमें इत्तला मिली है कि यहाँ कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में मासूम लड़कों और लड़कियों को दरगुजर बेच रहा है। हमें इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स की तलाशी लेनी है। तभी एक नहायत खूबरू पुलिस ऑफिसर संजीदगी से उनकी क्लास में दाखिल होकर अपनी रौबदार आवाज़ में प्रोफेसर से बोला, ऐसे कैसे आप तलाशी ले सकते हैं? क्या आपके पास सर्च वारंट है और ये इत्तला आपको किसने दी है? प्रोफेसर ने इस खूबरू पुलिस ऑफिसर की जानिब देखते हुए कहा। ज़ाहरा बतूल को छोड़कर क्लास की सभी लड़कियां इस खूबरू पुलिस ऑफिसर को गौर से देख रही थी। उन सब के दिल इतने हैंडसम पुलिस ऑफिसर को देखकर बुरी तरह से धड़क रहे थे, उनकी नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। ये रहा सर्च वारंट और ये इत्तला किसने दी है ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने संजीदगी से प्रोफेसर को जवाब देते हुए कहा। तो प्रोफेसर सर्च वारंट देखकर पीछे हटे। प्रोफेसर के पीछे हटते ही पुलिस ऑफिसर ने पीछे खड़ी नफरी को इशारा किया तो वह सब आगे बढ़े और पूरी क्लास की तलाशी लेने लगे। क्लास के बाहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खड़े सरगोशियों में बातें कर रहे थे। तभी सब जीरोन राजपूत उसके ग्रुप को वहाँ आते हुए देखकर उसके लिए जगह बनाने लगे। ज़ीरोन राजपूत चेहरे पर फुर्तीले तासुरात सजाए पुलिस की भारी नफरी को देखकर लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाकर ज़हरा बतूल की क्लास की जानिब देखने लगा। उस ऑफिसर ने जब वहाँ ज़ीरोन राजपूत को देखा तो अपनी एक आंख विंक करके चुपके से विक्ट्री का निशान बनाकर उसे देखा। सर, इनके बैग से ये मिला है, एक लेडी कांस्टेबल ने चिल्लाते हुए कहा। उस लेडी कांस्टेबल की आवाज़ पर सब स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर देखने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ज़ीरोन राजपूत उस लेडी कांस्टेबल की चीख पर जेब से एक सुनहरे रंग का खूबसूरत डब्बा निकालकर उसमें से सुनहरी रंग का सिगरेट निकालकर अपने लबों से लगाकर अपनी सुर्ख आंखों को ऊपर उठाकर क्लासरूम में हो रही कार्रवाई को एंजॉय करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? छोड़ें मुझे, ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ें, मैं बेकसूर हूँ। क्लासरूम से ज़हरा बतूल की घबराई और रोती हुई आवाज़ पर ज़ीनोन राजपूत के कल से जलते दिल में ठंडी फवार पड़कर उसे पुरसुकून करने लगी। वो फ़तह की खुमारी पूरे तन बदन में महसूस करके अपनी उनाबी लबों से सिगरेट का धुआं निकाल कर फ़ज़ा में छोड़ता, अपने दोनों तरफ आसमान के खोलता अपनी ब्राउन खूबसूरत आंखें बंद करके, वो ज़हरा बतूल की गिड़गिड़ाती और रोती हुई खूबसूरत आवाज़ को शातिराना मुस्कुराहट सजाकर सुनने लगा। ज़हरा बतूल, ये मेरे इंतकाम का छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखते हैं तुम मेरे कहर से मरती हो या बचती हो। ज़ीरोन राजपूत ने सुर्ख आंखें खोलकर क्लासरूम की जानिब देखते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा, और अपने कदम उसने यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ाए। सुल्तान आलम शाह ने जो अज़फ राजपूत के साथ किया था, ज़ीरोन राजपूत के दिल में जलती आग को भड़का दिया था। वो अपने भाई का बदला ज़हरा बतूल को इस तरह सारी यूनिवर्सिटी के सामने जलील होते देखकर ले चुका था।